Praise the Lord. प्रभु की स्तुति। Our God is a good God. हमारा प्रभु भला परमेश्वर Today है। we are addressing a subject that identifies with much of the situation going around the world. आज जो शीर्षक पर हम जो सीख ले रहे हैं वो आजकल हम देखते हैं इस महामारी की वजह से विश्व भर में ये दिखाई देता है। And today's message is fear not. और शीर्षक है आज के लिए डरो मत। Why are people so afraid? लोग इतने भयभीत डरे हुए क्यों है? What is happening across the globe? पूरे विश्व भर में क्या हो रहा है? Why is there so much fear and so much panic? इतना भय क्यों है पूरे विश्व में? Why there is so much anxiety? क्यों विश्व भर में इतनी हड़बड़ाहट है? Why there is so much stress and so much pressure? इतना दबाव लोगों के ऊपर क्यों है? It's good to ask these questions so that we can come at a core position of knowing where we are today. ये सारे प्रश्न पूछना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि हम किस स्थान पर खड़े हैं इस वक्त। And why is this all happening? और ये सारी चीजें जो हो रही है क्यों हो रही है? There are few examples that I will lay down of why we are afraid of what. कुछ उदाहरण हम देखेंगे कि हम किन चीजों से डरते हैं और क्यों। There are sections of people who are afraid of losing their freedom. कुछ लोग अपनी आजादी खोने का डर रखते हैं। There are few people who are more thinking about their future. कुछ लोग जो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। That means the years or the days ahead are uncertain. मतलब कि आगे आने वाली दिन या साल जो है बहुत ही अस्थायी है। They do not know what's going to happen. और वो नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला है आगे में। And they are thinking of more bad than the good that would happen. और इसलिए अनिश्चित होने की वजह से जो है वो ये सोच रहे हैं कि क्या बुरा और हो सकता है, ये नहीं सोचते हैं क्या क्या अच्छा हो सकता है। There is also something like fear of growing old. फिर इसका भी डर लगा रहता है कि अब उम्र होने लगी है। There is a fear of pain. या जो डर दर्द का भी होता है। There is a fear of sorrow. भय इसका भी होता है कि किसी दुख के बारे में। There is a fear of disappointment. या निराशापन का भय हो सकता है। There is a fear of grief. या दुख हो सकता है। There is a fear of loneliness. अकेलेपन का डर हो सकता है। There is a fear of being ridiculed. या फिर अपमानित होने का डर हो सकता है। A fear of being let down. या फिर आपको नीचे गिराया जाए इसका डर हो सकता है। There are so many people who are suffering from rejection. बहुत लोग जो है दूसरों से जो नकार पाते हैं उसका डर उनके अंदर होता है। There is a fear of death. या मृत्यु का डर हो सकता है। And that is what's happening around us. और ये तो हम आजकल चारों ओर देख रहे हैं। People are dying for reasons of the sickness that is hitting them. क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है इस बीमारी के वजह से जो उनके ऊपर आता है। Before the sickness hits them, they are getting having fear of it. और बीमारी उनके ऊपर आने से पहले से ही उनके अंदर वो डर होता है। There is a fear of failure. या फिर हार जाने का डर होता है। So these are the points that collectively cause a problem to our enjoying our daily lives. तो ये सारी बातें जो है समस्या हो सकती है हमारे रोज के जीवन के लिए। There are so many other types of fears. और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भय होता है। We can't call it big fears and small fears. डर होता है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा सा डर है या बड़ा डर है। But fear has come out from sin, from disobedience. लेकिन हम ये जानते हैं कि डर जो पाप और अनाज्ञाकारी के वजह से उत्पन्न हुआ।
Few people or couple of people fear of pests, maybe at their workplace, maybe at home, suddenly something crawls in, they are fearful. या कुछ लोग जो कीड़े मकोड़ों से जो डरते हैं, शायद ऑफिस में या घर में अगर किसी कीड़े को देख लिया तो उनको डर लगता है. There are people who are fearing to speak out. कुछ लोग मुंह खोलकर बोलने से उनको डर लगता है. People are fear of heights. कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं. There are people who fear to go into the water. कुछ लोग जो पानी के अंदर जाने के लिए डरते हैं. So there are different fears, but it all arises from sin, from disobedience, from So- rebellion. हम देखते हैं ये सारा जो डर है, हर प्रकार का डर जो है ये एक तरह से जो बलवा है उससे उत्पन्न होता है या पाप से उत्पन्न होता है. There is also fear of flying on an airplane. कुछ लोगों को जो है हवाई जहाज में जाने का डर भी होता है, Fear of going in the dark. या अंधेरे में जाने से उनको डर लगता है, Fear of thundering and lightning. या जो है कड़कड़ाहट से उनको डर लगता है, Fear of some type of animals. या फिर कुछ प्रकार के जानवरों से भी कुछ लोगों को डर लगता है. But this is what was never God's intention. लेकिन ये सारे हर प्रकार का डर जो है, चाहे जो भी हो, ये योजना नहीं थी परमेश्वर के मन में मानव जाति के लिए. You know, we'll go back into the garden, और इसलिए अब हम बगीचे में जाएंगे एक और बार. and because Adam sinned, और हम जानते हैं कि इसलिए कि आदम ने पाप किया and they ate of the forbidden fruit. और जो फल उनको कहा गया था नहीं खाओ वही उन्होंने खाया. The Bible says in chapter 3 verse 7 that their eyes of both of them were opened. और इसलिए उत्पत्ति 3 के 7वें जो वचन में लिखा गया है कि पाप करने के बाद जो है उनके आंखें खुल गई They knew that they were naked. और उन्होंने जान लिया कि वे नग्न हैं. What does this mean? तो इसका मतलब क्या है? When you sin, you lose the glory covering that is upon you. क्योंकि जब आप जो पाप करते हो उसकी वजह से महिमा का कवच जो आपके ऊपर होता है वो खो दिया जाता है. And that's what they lost. और यही उन्होंने भी खो दिया. They lost the covering, the glory of God that was upon their lives. पाप करने की वजह से आदम हवा ने भी जो है उनके ऊपर जो महिमा का कवच था, जो वस्त्र थे, वो उन्होंने खो दिया. And that's why one day we are going to have glorified bodies. We are going to be covered once again. और इसीलिए जो है जो वचन कहता है कि ऐसा दिन फिर से आएगा जब हमें फिर से महिमा के वस्त्र पहनने के लिए दिए जाएंगे. In the meanwhile, how do we handle all this fear? तो वो दिन आने तक हम ये सारे प्रकार के भय से कैसे हमें निपटना है? How did Adam handle it? आदम ने भय को कैसे संभाला? Did he handle it well? क्या उसने ठीक रीति से संभाला क्या? How did he manage the fear that happened suddenly because of sin? और पाप के आने की वजह से तुरंत जो भय उनके अंदर आया उसको उन्होंने कैसे संभाला? And this was the problem. He tried to do it on his own. और हम जानते हैं कि यही जो समस्या थी कि उन्होंने खुद से कोशिश की उसका हल निकालने के लिए. He sewed fig leaves together as coverings for them. और हम जानते हैं उन्होंने अंजीर के जो पत्तों को सी लिया ताकि खुद को ढाक सके. And they heard the sound of the Lord God walking in the cool of the day in the garden. और उन्होंने बगीचे में फिर जब प्रभु के आहट आने की आहट को सुना तो भयभीत होकर छुप गए. Because this kind of fear has arisen because they were disobedient. और ये भय इसलिए आया था क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया. They wanted to show that they were independent of God. वे दिखाना चाहते थे कि हम भी परमेश्वर के बिना जी सकते हैं. That's why they wanted to hide from the presence of God. और इसीलिए पाप करने के बाद वो परमेश्वर के उपस्थिति से छिप गए. But God had called Adam लेकिन परमेश्वर ने आदम को बुलाया and he said to him, "Where are you?"
और परमेश्वर ने आदम को पुकार कर कहा, कहाँ हो तुम? It's not that God did not know where he was, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर जानते नहीं थे कि आदम कहाँ पर है, but God wanted to make him identify himself at what position now he has come to and where he was before. लेकिन परमेश्वर आदम को ये एहसास दिलाना चाहता था कि पाप करने से पहले वो कैसा था और अब पाप करने के बाद वो किस स्थान पर पहुंच गया है। He was never hiding before God before this. क्योंकि इसके पहले वो परमेश्वर से कभी भी छुपे नहीं थे। That's why the hide and seek game never started when we learn from someone. This came from Adam in the garden. He started hiding. और इसलिए ये लुका छुपी का खेल जो है इस युग में शुरू नहीं हुआ है, ये आदम के टाइम से बगीचे से ही शुरू हो गया। All this while he was having a fellowship with God, hearing God's voice. उस घटना के पहले हमेशा उनका जो संगति था परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। And if you see in chapter 3 verse 10, it's clearly written, I heard your voice in the garden. और इसलिए 10वें वचन में लिखा गया है, मैंने तुम्हारी आवाज बगीचे में सुनी। And I was afraid because I was naked and hid myself. और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा लिया। So afraid of what? तो वो डर गया था, किस चीज से डरा? Because he broke the law of God. क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को तोड़ा। Where does fear come from? From breaking the laws of God. तो ये डर कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन का पालन न करने की वजह से आता है। That's why he was on shaky ground. He was on slippery ground. और इसलिए वो बहुत ही अस्थायी जगह पर खड़ा था। And that led him not only to fear from actually hiding himself. और इसलिए सिर्फ डर से नहीं भरा था, लेकिन उसने अपने आप को छुपाने की कोशिश की परमेश्वर से। That's why man has fallen short of the glory of God. और इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य ने जो है परमेश्वर की महिमा से जो है दूर हो गया। That's why fear today is a basic human emotion. और इसलिए आज जो भय है, जो डर है, मानव जाति का बहुत ही जो है सामान्य जो समस्या है। And that's why today fear is used to prevail over someone. और इसलिए आज इसी डर का इस्तेमाल लोग करते हैं किसी और पर या लोगों पर हावी होने के लिए। Fear of sickness. जैसे कि बीमारी का डर, Fear of this kind of pandemic that is going on. या अब जो हम देख रहे हैं उसी प्रकार से किसी महामारी का डर, Fear of a stigma. या फिर किसी भी बुरे नाम को पाने का डर। So this kind of fear is happening right now. तो इस प्रकार के डर हम देखते हैं, अभी भी हम देख सकते हैं। It's that we are constantly living in the grip of fear. इस प्रकार से कभी होता है कि हम अपने आप को हमेशा डर के बीच में पाते हैं। And that causes us to worry. और इसकी वजह से हम बहुत चिंता करने लगते हैं। And that's why anxiety gets into it. और इसलिए जो है अस्थायीपन आ जाता है। And God clearly says through His word, fear not. He's telling the children of Israel, fear not, I am with you. और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों से बार बार कहते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। Be not dismayed. और इसलिए निराश मत होना। See, when God says, I am with you, that means He really means it. और जब परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब कि परमेश्वर जो कहते हैं उसका पूरा अर्थ से कहते हैं। Because He knew that when Adam sinned, we will have to deal with fear. क्योंकि परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि जब से आदम ने पाप किया, ये जो डर की समस्या है मानव जाति को, उसका सामना करना पड़ेगा। He knew that because of sin, the enemy would take advantage of us. और परमेश्वर जानता था कि ये डर की वजह से शैतान जो है हमारे ऊपर जो है अपना अधिकार या फिर अपना जो करना चाहता है वो हमारे ऊपर करने की कोशिश करेगा। God knew that Adam opened the door so that the enemy would come and try to prevail itself against mankind. और इसलिए परमेश्वर ये भी जानता था कि शैतान पूरी कोशिश करेगा मानव जाति के ऊपर जो है सताव ढाने के लिए इसी डर का इस्तेमाल करके। And you will see throughout the Bible, there is fear, there is worry, there is anxiety. So many things keep on happening from that day to today, and it will be also in the coming days.
और इसलिए हम देखते हैं इतनी सारी चीजें, उतार चढ़ाव, हर प्रकार का डर जो है, निराशापन, ये सारी बातें जो है होती रहती है, क्योंकि मनुष्य ने ही वो दरवाजा खोला था कि शैतान ये सब कुछ करना शुरू कर सके। And we take Abraham for example. उदाहरण के तौर पर अब्राहम को लेंगे। In the backdrop of all the things happening, God is speaking to Abram. सारी चीजें होने के बावजूद चारों ओर परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं। In Genesis 12:1 he says, leave your country, your people, your father's household. उत्पत्ति 12 का 1 में प्रभु ने अब्राहम से कहा कि अपने देश को छोड़ दो, अपने लोगों को, अपने पिता के घराने को छोड़ दो And go to the land I will show you. और उस जगह चले जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। I will make you a great nation. मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा And I will bless you. और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा And I will make your name great. और मैं तुम्हारे नाम को मशहूर करूंगा And you will be a blessing. और तुम दूसरों के लिए आशीष बन And जाओ I will bless all those who bless you. और जो तुम्हें आशीष देंगे मैं उनको भी आशीषित करूंगा And whoever curses you, I will curse. और जो तुम्हें श्राप देंगे उनको मैं श्राप दूंगा And all the people of the earth will be blessed through you. और सारे धरती के लोग आशीषित होंगे तुम्हारे द्वारा। What a blessing. मतलब कि इतना अच्छा आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। God is telling him to leave. अभी परमेश्वर इब्राहिम को कहते हैं यहाँ से निकल लो। If someone tells us to leave a comfortable zone, we don't want to leave. अगर किसी ने हमसे कहा कि हमारे आरामदायक जगह को छोड़कर वहां से जाना है कहीं तो हमें अपने घर को छोड़कर जाना पसंद नहीं करेंगे। But God's ways are different. His thoughts are higher. लेकिन परमेश्वर की सोच बहुत ही अलग है और ऊंचे है हमसे। So God sees the end from the beginning. क्योंकि परमेश्वर अंत को देख सकता है शुरुआत से ही। So he knows things in Abraham's life. और इसलिए परमेश्वर इब्राहिम के जीवन को जानता था। He's creating a pathway और इसलिए परमेश्वर एक रास्ता बना रहे थे उसके to remove Abraham from a situation that Adam was in. ताकि इब्राहिम को उस जगह से निकाले जिस जगह पर एक बार अदम था। Adam was in a situation of fear where he got into a trap. अदम जो है उस जो है शैतान के जाल में फंस गया था और इसीलिए प्रभु ने चाहता था कि अब्राहम भी ऐसे फंसे। And that's why God is giving Abraham a way. और इसलिए परमेश्वर इब्राहिम के लिए एक रास्ता बनाते हैं। The way was to leave everything. और वो रास्ता था कि सब कुछ छोड़ दो। That was faith. और ये है विश्वास से। That was trusting. ये है भरोसा करके। That was depending on God. ऐसा हो सकता है जब पूरा निर्भरता वो परमेश्वर पर रखे। That was taking God at His word. और तब हो सकता है जब वो परमेश्वर को उसके वचन के अनुसार परमेश्वर को ले। And God is making a great promise here. और इसलिए परमेश्वर अब्राहम को एक महान जो वादा देता है। God is actually dealing with fears first. और परमेश्वर सारे जो है भय को जो है संभाल रहे हैं। That's why many people they just want to stick over there. They don't want to just come out of that comfortable zone. और इसलिए हम देखते हैं इसी जो डर की वजह से बहुत सारे लोग अपने आरामदायक जगह को छोड़कर जो है बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। And God is testing Abraham. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर इब्राहिम को परखते हैं। If Abraham would do this, this would happen. कि अगर इब्राहिम ने ये किया तो ये होगा। It is very conditional. और ये जो है जो परमेश्वर ने शर्त रखी थी। You know, God puts condition. Many people think that there is no conditions. Arey, everything is like, you can do what you want. No, it's not like that. बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो ही मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर शर्त को रखते हैं जो वादों को पाने के लिए। So he says, leave and then you will see this will happen. और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम अपने पिता के घराने को छोड़ दो और तब उसके बाद ऐसा ऐसा होगा। And you will see later on God promises Abraham a son. और फिर हमने जो है हम जानते हैं कि बाद में परमेश्वर ने अब्राहम को जो है एक पुत्र का वादा दिया। And you need to understand, lot of things keep happening after that. और हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद। After so many years also, there is no son. हम देखते हैं कि बहुत साल बीतने के बाद भी जो है हम देखते हैं कि अब्राहम का कोई जो बेटा नहीं था। So Abraham had gone through this experience. और इसका अनुभव भी अब्राहम को हुआ। That God spoke at some time, but later on
he did not see it coming to pass. कि अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को जब पहली बार सुना था, सारे वादों को सुना था, उसके बाद कई सारे साल बीत गए जब उसने उस वादे को पूरा होते हुए नहीं देखा था। And God had promised him his son. और वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे एक पुत्र का वादा दिया है। And but through Hagar he got a son and he named him Ishmael. और इसलिए जल्दबाजी में अब्राहम ने हगर से जो है रिश्ता जोड़कर एक पुत्र को छुपा लिया। But God promised him his own son through his own blood. लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि ये पुत्र को मैंने नहीं चुना है, लेकिन मैंने जो है तुम्हारे खुद के खून से जो है सरा के द्वारा एक पुत्र मैं तुम्हें दूंगा। Many a times God promises us many things, but we do not hang on there. और इसलिए कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमें जो वादे दिए हैं, हमारे अंदर वो रुकने की शक्ति नहीं होती है, जिसकी वजह से जल्दबाजी में हम ही कोई जो है दूसरे ही कदम ले लेते हैं। Many a time we think the fulfillment has to come very quick. और हम सोचते हैं कभी कभी कि प्रभु ने कहा है तो वो तुरंत ही होना चाहिए। And we give dates to God. God, you should do this within this 6 months or within a year. और हम परमेश्वर को तारीख देते हैं कि परमेश्वर ये मेरा जो काम है 6 महीने में आप इसको कर दो या 1 साल में इसको पूरा कर दो। हम परमेश्वर को तारीख देते हैं। Remember one thing very clearly. इसलिए ये बहुत ही ध्यान देकर सुनना, It is God's plan. ये परमेश्वर की योजना होती It है, is God's strategy. परमेश्वर की रणनीति होती है। And anything in your life which is of God's plan and strategy will always be God timing. और जो परमेश्वर ने योजना बनाई है, रणनीति बनाई है तुम्हारे खुद के व्यक्तिगत जीवन के लिए, वो परमेश्वर उसके समय में आपके जीवन में पूरा करेंगे। He makes all things beautiful in His time. क्योंकि उसके समय में वो सारी चीजें अच्छाई के लिए कराता है। God has even time under His control. और परमेश्वर के हाथों में सारा समय है। We do not have time under our control. समय हमारे हाथों में नहीं है। We do not know what's going to happen tomorrow. हम नहीं जानते हैं कि आने वाले कल क्या होने वाला है। But the one who made time knows what is tomorrow. लेकिन जिसने समय को उत्पन्न किया है वो जानता है कि किस समय में क्या होगा। But we all know that we believe in Jesus Christ. Our tomorrow is eternal life. Today is eternal life. लेकिन ये बात हम जानते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से जो समय हमें दिया गया है, अनंत जीवन का समय, वो हम जानते हैं कि स्थायी रूप से आने वाला है हमारे लिए। This is the reason we should not fear. Do not worry about food, clothing or shelter. We do not have to worry. Jesus Himself said that. और इसी अनंत आशा की वजह से यीशु ने हमसे कहा है कि आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, ये सारी चीजों की चिंता तुम मत करो। And these are the very things that we are thinking about most of the time. लेकिन मनुष्य ज्यादा करके इन्हीं चीजों के बारे में चिंता करता रहता है। And should we have a plan B? तो हम सोचते हैं कि एक दूसरी योजना जो बनाकर रेडी रखेंगे, Should we have a backup? एक जो बैकअप का प्लान जो है रेडी रखेंगे, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे। If God's plan doesn't work, then what? मतलब कि अगर परमेश्वर की योजना पूरा नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे? That is also a sign of being afraid, of having fear. तो ये भी एक चिन्ह होगा कि आपके अंदर वो डर है, वो भय है। Listen, saints. और इसलिए आप सुनो, If God has spoken, it has to happen when you cooperate with Him. ये जान लो कि अगर परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है तो सही समय में परमेश्वर उस वचन को पूरा करेंगे आपके जीवन में। God is very clear with every word that He speaks. क्योंकि हर वो शब्द जो प्रभु के मुख से निकलता है उसमें स्पष्टता होती है परमेश्वर की ओर से। So God is clear in all that He does. और परमेश्वर बहुत ही साफ है हर कार्य में जो वो करता है। We'll go to Genesis 15, verse 1. अब जाएंगे उत्पत्ति का 15वां अध्याय और पहला वचन। Another while, the word of the Lord came to Abram in a vision. प्रभु का वचन अब्राम को आया एक दृश्य में। And He says, do not be afraid. और उसने अब्राम से कहा, डरो मत। Do not be afraid. डरो मत, I am your shield, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, your exceedingly great reward. तुम्हारा बहुत ही बड़ा इनाम। God doesn't say, I will give you a shield. प्रभु ये नहीं कहता है कि मैं तुम्हें एक ढाल दूंगा। God says, I am your shield.
प्रभु कहता है मैं तुम्हारा ढाल हूँ। That means, if you talk about a shield, it only covers the portion of your chest, your front portion. जब हम ढाल की बात करते हैं, यानी कि हम जानते हैं कि एक ढाल को जब हम पकड़ते हैं तो अपने छाती के हिस्से को छाती के हिस्से की सुरक्षा के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। But all the other areas, it is left bare. लेकिन दूसरे हिस्से जो शरीर के हैं वो खुले हुए होते हैं। So behind it is, we do not know what's happening. और हम ये नहीं जानते हैं कि वहां पर क्या होगा। But when God says, I am your shield, that means from up, from down, from all the sides, we are covered. लेकिन जब प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मतलब कि प्रभु के ढाल के पीछे हमारा पूरा शरीर आगे और पीछे सुरक्षित है। We must understand, because God is saying, I am your shield. I'm not giving you a shield. I am your shield. हमें ये समझना है कि प्रभु ये नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें ढाल दूंगा, वो कहता है कि मैं ही तुम्हारा ढाल हूँ। There were 4 things that Abraham must have thought at that time. उस समय 4 चीजें होंगी शायद जो अब्राहम के मन में था। 1, he was too old. सबसे पहला उसका काफी उम्र हुआ था। Number 2, दूसरी बात, many years had passed since the promise had already been given. वादा को सबसे पहले जब उसने पाया था उसके बाद कई साल बीत गए थे उसको पूरा न होते हुए। Hope. You know what is hope? और You're hoping for something and it is taking too long. That means you get disappointed. और हम जानते हैं कि एक आशा होती है, उस आशा के ऊपर जब हमारी निगाहें होती है और वो आशा पूरा नहीं होता है तो हम एक प्रकार से अशांत महसूस करते हैं। Number 3, nothing like this he had ever faced before. This is something new. तीसरी बात, जो वो अनुभव कर रहा था इससे पहले जो है ऐसा अनुभव उसने कभी नहीं किया। There is inner kind of struggle that is going on. मतलब कि उसके अंदर से जो है एक अंदरूनी संघर्ष उसके अंदर हो रहा है। Did I really hear God back in time? ऐसे प्रश्न आते होंगे कि क्या मैंने सच में परमेश्वर की आवाज सुनी थी क्या? Otherwise it should have happened by now. नहीं तो इतने सालों में उसको पूरा होना चाहिए था। Why it is taking so long? इतना समय क्यों लग रहा है? And Sarah, my wife, is already past his age, he must have thought. और उसने ये भी सोचा होगा कि मेरी पत्नी जो सैरा है उसकी भी काफी अभी उम्र हो गई है। This is impossible. तो ये अभी जो वादा प्रभु ने दिया था अब तो असंभव दिख रहा है। Let me tell you, saints, a God is a God who does impossible things. इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर असंभव चीजों को संभव करके देता है। Sarah, when she laughed, she also doubted God in some way or the other. और जब सैरा हंसी थी तो एक प्रकार से उसके मन में भी जो शक आया था कि ये पूरा कैसे होगा। When you think about all these things, it really means there is nothing that you can believe. और जब ऐसी चीजों के ऊपर हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ जो बचा ही नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सके। So the question was arising here, will God's promise be enough for Abraham? तो प्रश्न यहाँ उभरता है कि परमेश्वर का वादा सिर्फ वो ही काफी था उसके जीवन में पूरा होने के लिए। But God was managing a way for him. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर एक रास्ता जो बना रहे थे अब्राहम के जीवन के लिए। How does it apply to us today? तो ये सब कुछ हमारे जीवन से उसका क्या लेना देना? With all the fears that is running around. हम देखते हैं कि आज के युग में जो है इतने सारे प्रकार के भय या डर हम देखते हैं। Through word of mouth, through media, through all the news, through all sorts of things about the pandemic and so on, there is some kind of fear. हम अपने चारों ओर देखेंगे तो हर प्रकार का डर ही हम देखते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल से हो, जो मीडिया से हो, या चारों ओर जो लोग कहते रहते हैं उससे जो डर उत्पन्न होता रहता है। What will happen if I get? और इसका डर भी होता है कि क्या होगा अगर मुझे ये बीमारी आई तो। But God is saying, I am your shield. लेकिन परमेश्वर ने कहा है वचन में कि मैं तुम्हारा ढाल हूँ। I want you to look at the scripture again and again and again and
believe in your heart that God is your shield. और इस वचन को आप जो है बार बार पढ़कर देखकर आपके अंदर उसके ले लो, ताकि आप ये पूरा विश्वास करिए कि परमेश्वर खुद तुम्हारी ढाल है। When you speak about God as a shield, it really means two things. और जब आप खुद ये कहेंगे कि परमेश्वर मेरी ढाल है, तब आप दो बातें कह रहे हो। He protects us in the times of having doubt. सबसे पहले वो हमारी सुरक्षा करेंगे जब शक सामने आएगा, And the second thing, He rescues us in times of danger. और दूसरी बात, जब जो है किसी खतरे का जो संदेह होगा, तो खतरे में भी जो है हम देखते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे। The very Creator is going to protect the creation. और हमारा निर्माण करने वाला परमेश्वर ही अपनी सृष्टि की सुरक्षा करेगा। It's like a small bacteria that is roaming around and causing a problem to mankind. जैसे कि एक छोटी सी जो जर्म्स है, जो छोटा सा जो समस्या है, वो चारों ओर जो जैसे घूमता रहा है। You know, when God made man, the Bible says He looked at His creation and said it was very good. जब परमेश्वर ने मनुष्य का उत्पत्ति किया था सृष्टि बनाने के टाइम पर, तब परमेश्वर ने मनुष्य को देखकर कहा कि ये सृष्टि बहुत ही अच्छी है। So we need to understand what God is saying today. तो आज के दिन प्रभु क्या कह रहे हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। There is another part that says that about hope. एक और भाग है जो आशा के बारे में कहता है। In Christ we have hope. यीशु मसीह में हम आशा रखते हैं If we die, we yet live. कि अगर हमारी मृत्यु हो भी जाती है तो भी हम जीवित ही रहते हैं। That's why if we live, we are in a bonus. और इसलिए अगर हम जी रहे हैं शारीरिक रीति से, तो ये एक बोनस जैसा We है। have nothing to lose. खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, We have nothing to, get afraid of. और इसलिए हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। Yet let me tell you, if you're frightened of losing your life, there's a problem. उसके बावजूद हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर वो डर है, अपने जीवन को खोने का डर, तो वहां पर समस्या है। In fact, it says if you lose your life in the kingdom, you will gain it. क्योंकि लिखा गया है कि राज्य में अगर तुम अपने इस शारीरिक जीवन को खो देते हो, तो असल में आपने अपने जीवन को पा लिया। We are kingdom people who walk under the banner of Christ. क्योंकि हम राज्य के लोग हैं जो यीशु मसीह के नीचे रहते हैं। So 1 Thessalonians 4:13 says, एक थिस्सलुनीका की पुस्तक 4 अध्याय और 13 वचन कहता है, But I do not want you to be ignorant, brethren, मैं चाहता हूँ कि आप अनजान नहीं बनो concerning those who have fallen asleep, मेरे भाइयों, उन लोगों के बारे में जो मृत्यु को देख लिया है, lest you sorrow as others who have no hope. नहीं तो आप दूसरों की तरह शोक मनाओगे जैसे कि उनके पास कोई आशा न हो। For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. अगर हम विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उसका पुनरुत्थान भी हुआ, तो यीशु मसीह में हमारा पुनरुत्थान भी होगा। Jesus himself says, without me you can do nothing. यीशु ने खुद कहा कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। That's why our hope as in Christ. और इसलिए हमारा आशा जो है यीशु मसीह में ही है। Who can defeat us when God is our shield and our joy of our salvation? हमें कौन हराएगा जब यीशु मसीह खुद जो है हमारी ढाल है, वो हमारा मजबूत गढ़ है, वो हमारा उद्धार करता He है, is the one who will protect us. और वो ही है जो हमारी सुरक्षा करेगा। Let us continue to believe that our God is a protector. और इसलिए हमें अपने विश्वास को निरंतर जो है रखना है कि परमेश्वर
हमारी सुरक्षा करेंगे। And He knows the good that is for each one of us. और वो जानता है कि हम सबके लिए क्या अच्छा है। That's why we do not need to worry about anything. और इसलिए हमें किसी भी चीज से डरना नहीं है। We need to just carry on the work of the kingdom. हमें बस राज्य के कार्य को जारी रखना है। Fear will keep coming and coming and coming and threaten our lives. अलग अलग प्रकार के डर जो है वो आते रहेंगे और हमें जो डराने की कोशिश करते रहेंगे। That's why the more you get involved in doing kingdom work, fear will never try to afflict you. और इसलिए जितना आप अपने आप को राज्य के कामों में व्यस्त रखोगे तो आपकी निगाहें जो है डर के ऊपर या ऐसे किसी भी चीज के ऊपर जाएगा ही नहीं। You know, sicknesses are afflicting people. अलग अलग प्रकार की बीमारियां लोगों के ऊपर हावी हो गई। But we are authorized to drive sickness out. लेकिन हमारे पास अधिकार दिया गया है कि हम बीमारी को निकाल बाहर करें। So if we are authorized, how can sickness try to afflict us? तो अगर हमें अधिकार दिया गया है बीमारी को निकालने के लिए तो बीमारी हम पर हावी कैसे हो सकती Because है? we have to be on the offensive, not the defensive. और इसलिए जो है इस युद्ध को हमें लड़ना है, ना कि सिर्फ अपनी सुरक्षा करते रहना है। Many a times we are more on the defensive than the offensive. बहुत बार हम सिर्फ अपनी सुरक्षा करने में ही व्यस्त होते हैं लेकिन शत्रु पर आक्रमण नहीं करते हैं। Many are thinking what the devil will do to us. बहुत लोग इसलिए चिंता करते हैं कि शैतान अब क्या करेगा मेरे जीवन में। But the devil must think what the Christians will do to me. जबकि असल में शैतान को ये इस बात की चिंता करनी चाहिए कि अब ये विश्वासी और क्या क्या करने वाला है, मुझे तंग करने वाला है। He must in fact have the fear when the Christians start moving on the streets. और इसलिए शैतान को डर लगना चाहिए जब हम रास्तों पर उतरते हैं। Because we bear the power of Christ in us. क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का सामर्थ मौजूद है। To love people. दूसरों से प्रेम करने का To सामर्थ, comfort people. दूसरों को सांत्वना देने का To have सामर्थ, compassion over them. दूसरों के प्रति सहानुभूति होने का We need to move in the things of God. और परमेश्वर की चीजों में आगे बढ़ते रहने का। And why does God sometimes delay our answers? तो कभी कभी देरी क्यों होती है हमारे उत्तर को पाने में? We can just pray and it must come fast. हम सोचेंगे कि हमें जस्ट प्रार्थना करना है और उत्तर तुरंत आना चाहिए। But God wants us to mature on the faith. लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा विश्वास पूरी रीति से परिपक्व हो। He doesn't want something that is raw just to go and get battered. वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने कच्चेपन में आगे जाए और मार खाकर वापस He आए। wants us to learn through experience and time. वो चाहते हैं कि समय से और अनुभव से हम सारी चीजों को सीख ले। He wants us to be responsible and वो mature. चाहते हैं कि हम जिम्मेदार बन जाए, परिपक्व हो जाए। He wants us to be grown up in the वो kingdom. चाहते हैं कि हम राज्य में बढ़ोतरी पाए। We must know that's why what to pray and how to pray. और इसलिए ये भी जरूरी है कि हमें जान लेना है कि क्या प्रार्थना करना है और कैसे प्रार्थना And करना है। that's why we may be thinking why God is delaying things. और इसलिए कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर इतनी देरी क्यों हो रही है। Man has been given authority over earth. मनुष्य को पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया गया, Rulership rights have been given. शासन करने का अधिकार दिया To गया है। those who are in Christ Jesus, specially authority is there. खास उनके लिए जो है जिनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जो राज्य के नागरिक। So how do we deal with this kind of fear? तो इस प्रकार से अलग अलग भय से हम जो है कैसे इसको संभालें? We must develop a confidence in us that Christ is in us, the hope of glory. सबसे पहले हमारे अंदर वो Hallelujah. आत्मविश्वास होना चाहिए, ये जानते हुए कि जो है महिमा का आशा यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास है। That means whenever we go, we know that Christ in us, the Holy Spirit is there. मतलब हम जहाँ पर भी जाते हैं यीशु मसीह हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। He will lead us and He will direct us. और इसलिए वो ही हमारी अगुवाई भी करेगा, हमें दिशा दिखाएगा कि हमें किस प्रकार से चलना है। This is a testing time for the church. और ये समय जो है इस वक्त, जो वर्तमान में, ये कलीसिया के लिए जो परख का समय है। The church is being developed for great times ahead. और कलीसिया की तैयारी हो रही है आने वाले महान
समय के लिए। That's why we need to be faithful at this time. और इसलिए इन दिनों में विश्वसनीय बने रहना जरूरी है। Abraham's faith was tested by he had to leave his country. अब्राहम का भी विश्वास परखा गया जब परमेश्वर ने उसे कहा अपने देश को छोड़कर वहां से निकलो। In any circumstance, our faith is being tested. हर परिस्थिति में हमारा विश्वास परखा जाता है। There are circumstances that come in. ऐसे ऐसे अलग जो परिस्थितियां आती रहती There है, are thoughts that come inside. अलग अलग प्रकार की सोच हमारे मन में आता रहता है। How we handle it through God's तो word. परमेश्वर के वचन से हम उनको कैसे संभालते We हैं? fight not flesh and blood. हमें याद रखना है हमारा संघर्ष दूसरे लोगों के साथ नहीं है। The second is to ensure that God alone gets the glory. दूसरी बात ये हमें देखना है कि सारी महिमा परमेश्वर को मिले अच्छी चीजों के लिए। Whatever we do, because it is the authority that we work through. और जो भी चीजें हम करते हैं परमेश्वर के अधिकार के द्वारा हम करते हैं। We use God's word against the enemy. परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल हम करते हैं शैतान के विरोध में। The mistakes we make is we do not use God's word. We try to fight it alone. हम क्या गलती करते हैं कि हम खुद से जो परिश्रम करते हैं सफल होने के लिए परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल नहीं करते। Speak God's word, declare it, but before that we need to believe that we are in that position. वचन को घोषित करना, मुंह से बोलना जोर से अच्छा है, लेकिन बोलने से पहले उसका विश्वास आपके अंदर होना जरूरी है जिससे वो बाहर निकले। Abraham had to wait so many years for the son. जैसे इब्राहिम को काफी सारे साल इंतजार करना पड़ा जब तक कि सारा के द्वारा उसका एक पुत्र नहीं होता। And he agreed with Sarah to even sleep with Hagar. और जो है हम देखते हैं अब्राहम ने सैरा की बात को मानकर जो है हैगार के पास जो है अपना रिश्ता जो बनाने के लिए भी तैयार हो गया। But what God promised that he will complete. लेकिन जो वादा परमेश्वर ने किया है परमेश्वर पूरा करते हैं। You know, your plans may work for some time and Ishmael was born. शायद हमारी योजनाएं थोड़े समय के लिए सफल हो, जिस प्रकार से जब इश्माएल का जन्म हुआ था हैगार के द्वारा, तब उनको ऐसे खुशी मिली थी कि चलो एक पुत्र आ गया। For some time that fear must have gone. तो थोड़े समय के लिए उसके अंदर का जो डर चला गया होगा कि अब ये पुत्र तो मुझे मिल गया है। But God is very specific when he's making promises. लेकिन जब परमेश्वर वादों को देता है तो स्पष्टीकरण से देता है। You can make a way and you cannot say that hey, God did this. No, God is very clear and he is very clear in the way also and the procedure he is doing it. किसी भी वचन का पूरा जो है होने के लिए जो है हमें इंतजार करना है, क्योंकि परमेश्वर अपने सही समय में अपने वचन को पूरा जरूर करते हैं। इसलिए अपने परिश्रम से चीजों को हासिल करने की कोशिश छोड़नी चाहिए। So Abraham at some stage became short-sighted. हम देखते हैं इसलिए थोड़े समय के लिए जो है अब्राहम की निगाहें प्रभु की ओर से जो है हट गई। He maybe wanted to help God out to pass this promise. ये शायद वो कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर की मदद करूं ताकि परमेश्वर का दिया गया जो वादा है वो पूरा हो जाए। But God is very clear. लेकिन परमेश्वर बहुत स्पष्ट है। And Isaac was born. और इसलिए हम देखते हैं इसहाक का जन्म हुआ। God often delays his answers because he wants the man to be set right in order. और कई बार ये जो देरीपन होता है इसलिए होता है क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कि इस मनुष्य के जीवन में सारी चीजें क्रम में आ जाए, उसके बाद ये पूरा होना अच्छा है। The problem today here is man is trying to fix man. That's the problem. समस्या ये है आज के दिनों में कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ठीक कराने में लगा है। Man cannot fix man. It is God who can fix the man. It's a manufacturer that can fix the product. लेकिन हमें ये जानना है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को ठीक नहीं कर सकता है। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर ही मनुष्य को ठीक कर सकता है। To get out of fear, the third point is to deepen our trust in God. डर से निकलने का तीसरा जो पॉइंट है वो है कि अपना विश्वास जो परमेश्वर पर है, भरोसा परमेश्वर पर है, उसको और गहरा बनाना है। That's why Abraham is called the man of faith. और इसलिए हम देखते हैं अब्राहम को जो है विश्वास का पिता कहलाया गया है। Imagine if Abraham had to wait, how much more we have to wait. अगर इब्राहिम
को और इंतजार करना पड़ा होता तो हमें और कितना इंतजार करना पड़ता। There are times we get our answers quickly, ऐसा होता भी है कि कभी कभी तुरंत ही हमें उत्तर मिलता है, but that is all God's prerogative. लेकिन ये सारी बातें तो परमेश्वर के हाथों में It है। all depends on God. परमेश्वर पर निर्भर है कि वो चीजें कब पूरी होंगी, It doesn't depend on us. हमारे ऊपर निर्भर नहीं होता। But what we have to do is continue to trust in Him. लेकिन हमें क्या करना है, फिर सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा कायम रखना So है। what the upper understanding of all this is? तो ये सारी चीजों की क्या समझ निकलता है? If man has gone into the trap and got afraid, it is God has a person who has to bring us out. अगर हम डर के कब्जे में फंस गए हैं तो परमेश्वर ही हमें उस डर के जाल से निकाल सकते हैं। Jesus went to the cross alone. यीशु अकेले ही क्रूस पर गए। Many betrayed him. बहुत लोगों ने हालांकि यीशु का साथ छोड़ दिया, Many ceased to follow him. बहुत सारे लोगों ने उसका पीछा करना भी छोड़ा, But he went it alone. लेकिन यीशु ने अपने उद्देश्य को अकेले ही पूरा किया। At the very end in the Garden of Gethsemane also he had the disciples. गेत्सेमनी के बगीचे में भी जब आखिरी जो समय आया था करीब, तभी भी उसके शिष्य उसके साथ थे, But later on they never walked with him to the cross. लेकिन उसके तुरंत बाद से हम देखते हैं शिष्यों ने यीशु का साथ छोड़ दिया क्रूस तक जाने। So today's answer to the problem is Jesus himself. तो आज भी समस्या जो है का हल सिर्फ यीशु ही निकाल सकते He हैं, is fearless. क्योंकि यीशु निडर है He has overcome death. और यीशु ने मृत्यु पर जीत He हासिल has की। overcome shame and sin. यीशु ने हर शर्म और पाप के ऊपर विजय हासिल किया। We are privileged to honor our God. और हम जो है बहुत ही किस्मत है कि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं। God doesn't need us, परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है but कार्य yet करने He की, utilizes us. फिर भी वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। Why? Because we are His creation. क्यों? क्योंकि हम उसके हाथों की सृष्टि है, Because we are His image. क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए। It is we who desperately need Him. हालांकि हमें उनकी जरूरत है, But yet God calls out our name. फिर भी परमेश्वर हमारा नाम लेकर हमें पुकारता है। When you are chosen out, you are chosen out of that area of fear into the light of God. जब परमेश्वर ने आपको चुना था तो आपको उस डर से निकालकर रोशनी में डालने के लिए पुकारा था। In the kingdom of our Lord Jesus Christ, there is no fear. यीशु मसीह के राज्य में डर के लिए कोई जगह नहीं है। God is speaking today. परमेश्वर आज बात कर रहे हैं हमसे। Whenever you come to you, He's speaking. और जब भी वो आते हैं तो वो हमसे कुछ ना कुछ बात जरूर करते He's हैं। saying, I am your strength today. वो कहता है आज की मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, I am your courage today. मैं जो है तुम्हारा बल हूँ, I am your health today. तुम्हारा स्वास्थ्य मैं हूँ, I am your supply today. तुम्हारे लिए सारी उपलब्धि के लिए मैं हूँ, I am your defender today. तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए मैं हूँ, I will forgive you. मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा I करूँगा, am your joy today. आज तुम्हारा आनंद मैं हूँ, I am your future today. तुम्हारा भविष्य मैं हूँ, You are in the everlasting और kingdom. तुम अनंत जीवन के भागीदार You हो। possess eternal life. अनंत जीवन तुम्हारा है, Your names are written in the Lamb's book of life. तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है। God is saying once again to you and me, और इसलिए फिर एक बार परमेश्वर आपसे और मुझसे कह रहे हैं I am whatever you need, you speak to कि me. जो भी आप चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए मैं हूँ, मुझसे बात करो। Faith focuses on God, विश्वास परमेश्वर पर अपनी निगाहें रखता है, not on the problems. समस्या पर अपनी निगाहें नहीं रखता। Faith trusts in God's timing, not our own. विश्वास परमेश्वर के समय पर निर्भर रहता है, खुद के ऊपर निर्भर नहीं होता। Faith grows by believing God in spite of your circumstances. विश्वास जो बढ़ता है परमेश्वर पर विश्वास करने से, ना कि परिस्थिति पर निर्भर रहने से। So we need to focus on God today. और इसलिए आज हमें अपना ध्यान प्रभु पर रखना We है, need to trust in His timing. उसके समय पर विश्वास करना We है। need to grow into believing in God and becoming mature in the faith. हमें जो है अपने विश्वास को बढ़ाकर प्रभु पर अपना विश्वास भरोसा
दृढ़ करना है, Faith obeys God step by step. क्योंकि विश्वास परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है हर कदम पर। There are unseen patterns and steps here and there, but God will lead us step by step by step. हालांकि अलग अलग जगह होंगे जहां हमें अलग अलग जो कदम लेने पड़े, लेकिन परमेश्वर हर कदम के लिए हमारा निर्देशन करेगा। Many try to question, can God be trusted? बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि क्या परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं क्या? Who else can be trusted more than the creator and the maker of heaven and earth? तो और किसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं? उसी के ऊपर कर सकते हैं जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया। Who else can be trusted, who has provided and who has kept us and preserved us up to today? उस पर ही विश्वास कर सकते हैं जिसने हमें आज तक सुरक्षित रखा है, आज तक सारी उपलब्धियां कर हमारा ख्याल रखा है। Who else can be trusted? The one who gave his only life for us on the cross and shed his precious blood. और किस पर विश्वास करते हैं? उसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं जिसने खुद से जो है अपनी इच्छा से क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाकर हमें बचा लिया। Who else can be trusted when we take the name of Jesus and the enemy has to bow down? हमें जो है और किस पर विश्वास कर सकते हैं? बस उस पर विश्वास कर सकते हैं जिसने शैतान को हरा दिया और विजय हमें दे दिया। That's when ending today. और इसलिए अंत में हम आपसे ये कहना चाहते The हैं, word says some trust in horses and some trust in chariots, but we trust in the name of the कि Lord. वचन कहता है कि कुछ लोग रथों पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग घोड़ों पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। Children of God, इसलिए परमेश्वर के बच्चों, those who believe in God, तुम सभी जो प्रभु पर विश्वास करते you are हैं, not to be afraid. आपको डरने की जरूरत नहीं है। Don't be afraid आपको नहीं डरना है of any kind of sickness, किसी भी प्रकार की बीमारी से, any kind of pestilence, किसी भी प्रकार की महामारी से, any kind of things that is happening around. या कोई भी चीजें जो आपके चारों ओर हो रही हो। The message today is fear not. आज तुम्हारे लिए संदेशा है, डरो मत। God says, I am your shield. मैं तुम्हारी ढाल हूँ, परमेश्वर कहता है। I will reward you, says the Lord. मैं तुम्हें इनाम दूंगा, परमेश्वर कहता If है। you're watching this video, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, God is putting a new boldness into your life. तो एक नया दृढ़ता परमेश्वर आपके हृदय में डाल रहा He is है। equipping you with His word. परमेश्वर अपने वचन से आपको शस्त्र दे रहे हैं। This is not my word. ये मेरा वचन नहीं है, This is only my voice. ये सिर्फ मेरी आवाज है। But God is using the voice. लेकिन परमेश्वर मेरी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। That voice also belongs to Him. वो आवाज भी परमेश्वर का ही दिया हुआ Because है, it has been given by God. क्योंकि वो प्रभु ने हमें दी So है। let the voice of our voice be used by God. और इसलिए हमारी आवाज का इस्तेमाल प्रभु करे, That His word will go forth ताकि उसका वचन आगे जाए दूसरों के and लिए, heal their disease. जिस वचन से लोग चंगे हो There जाए। is power in the name of the Lord. प्रभु के नाम में सामर्थ, There is power in the word of God. प्रभु के वचन में सामर्थ So है। today let us trust in God. और इसलिए आज हम अपना विश्वास परमेश्वर पर रखें। You need to say, I am not afraid. आपको कहने की जरूरत है कि मैं नहीं डरूंगा। Where this confidence comes from? ये आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? Your confidence comes from the word. परमेश्वर के वचन से आएगा। Keep reading the word. वचन को पढ़ते रहो, Keep meditating the word. वचन पर मनन करते रहो। Nothing can touch us कोई भी चीज हमें हाथ नहीं लगा सकती unless God the Father permits it. Nothing can touch us. जब तक कि परमेश्वर ने अनुमति ना दिया हो हमें हाथ लगाने के लिए, तब तक कुछ भी हमें हाथ नहीं लगा सकता। The enemy has to get permission from God to touch his children. क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को हाथ लगाने के लिए शैतान को भी परमेश्वर से अनुमति लेनी पड़ती You है। are God's beloved. और आप परमेश्वर के प्रिय लोग हो, You are God's royal. आप परमेश्वर के शाही लोग You हो, are God's special. आप परमेश्वर के खास लोग हो। Just do kingdom work बस परमेश्वर के राज्य के काम में अपने आप को करते and रहो God will be with you. और परमेश्वर आपके साथ सदैव रहेंगे। God bless you परमेश्वर आपको आशीषित करे and shalom. और शालोम।